So, good morning, friends. Today we are going to cover the sixth chapter of sixth class, and that is new questions and ideas. देखिए जो ये टॉपिक रखा गया है नाम, इसमें क्या what a great combination that how NCERT is making you a travel of academic journey of rational learning कि किस तरीके से बौद्धिज्म या जैनिज़्म डेवलप हुआ उस समय और उनको किस तरीके से दिखाने की कोशिश की है देन दैट इज़ विथ न्यू क्वेश्चन एट दैट टाइम। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेरीज़ है, क्योंकि सिक्स क्लास में हम लोग जनरली देखें कि NCERT क्वेरीज़ के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। अंगहा स्कूल ट्रिप, this was the first time Anghas was going to the school trip. They boarded the train from Pune late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher to tell the children about the Buddha and take them to see the Sarnath as well. That means somewhere the parents are that much aware of the things that if someone is going to the Varanasi, he or she should know most of the possible diversities which our country is having. And near Varanasi there is a place called Sarnath, I think around 25 to 27 kilometers away, where महात्मा बुद्ध gave his first lecture. नाउ चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है स्टोरी। द स्टोरी ऑफ बुद्धा सिद्धार्था ऑल्सो एज गौतम founder of Buddhism was born about 2500 years ago. So the story is about, the reality is of about 2500 years ago का है। This was a time when rapid change in the lives of the people. अभी ये रैपिड चेंज का मतलब कह रखा है, तो ये आपको यहाँ पर सोचना है कि रैपिड चेंज किस कंटेक्स्ट में है। 2500 years ago, what kind of rapid change was taking place at that time? हम लोग आगे बढ़ते हैं। As you saw in chapter 5, some kings in Mahajanpadas were growing more powerful. New cities were developing and the life was changing in the villages as well. Many thinkers were trying to understand the changes in the society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. Kya? Meaning of life. This was also a change during that time, 2500 years ago. That means when Mahajanpadas were in practice. उसी के दौरान, उसी के इर्द गिर्द, even people were trying to understand the subjective meaning of the life. The Buddha belonged to a small Gana known as Sakya Gana and was a Kshatriya. बुद्धा क्या थे? तो साक्य गण से बिलोंग करते थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. He wandered for several years, meeting and holding discussions with thinkers. He finally decided to find his own path to realization, and he meditated for days and end under the people tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained the enlightenment. एनलाइटमेंट कहाँ पर वो प्राप्त कर रहे हैं? बोध गया में। किस ट्री के नीचे? पीपल ट्री के नीचे। अभी वो कौन सा जनरेशन चल रहा है जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है? 5th जनरेशन। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा द वाइज वन। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी, वेयर he taught for the first time. He has spent the rest of his life traveling on foot. पैदल उन्होंने ट्रैवल किया, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पासेस अवे एट कुशीनारा। उनकी जो महानिर्वाण की प्राप्ति हुई है वो कुशीनारा में हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो आगे की सब टॉपिक्स है। तो बुद्धा taught that life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have cravings and desires which often cannot be fulfilled. Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied.
उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी टाइप का सोच विचार रहता है जो कहीं न कहीं हमें सेटिस्फाई रहने नहीं देता है एंड उसकी वजह से हमें दुःख होता है। द बुद्धा डिस्क्राइब्ड दिस एज थर्स्ट और तन्हा। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. वो ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ से ये जो दिक्कतें हैं ये जा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ फॉलो करना पड़ेगा. सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस कुड be done. He also taught the people to be kind and respect lives of the others, including animals. He believed that the results of our action are called karma, whether good or bad, affect both in the life and the next. तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. ये कहना ये चाह रहे हैं कि ही वॉज बिलीविंग ऑन द कर्मा प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम पुनर्जन्म को भी ये कहीं ना कहीं ये सब वो कर रहे हैं कि मान्यता है इनके फिलॉसफी में. द बुद्धा टॉट द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेजेस. ये भी एक क्यों प्राकृत में बताना चाह रहे थे, क्योंकि प्राकृत वॉज द लैंग्वेज विच इज़ ऑर्डिनरी पीपल वर यूजिंग इन देयर डेली एक्टिविटीज़. एंड ये क्या कर रहा था, ये इजी कर दे रहा था जिससे कि मास लर्निंग पॉसिबल था, मास टीचिंग पॉसिबल था, मास क्वेरीज पॉसिबल था. व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदा. तो यहाँ पर देखिए कैसे चेंजेस है. वेदा वाज रिटन इन संस्कृत एंड संस्कृत वाज स्पोकन बाय दोज elite and literate people, but at the same time Prakrit was used by ordinary people. So this became easy for mass teaching for Buddha. So this is one of the strategy you should consider. हम लोग आगे बढ़ते हैं. उसमें देखते हैं, he also encouraged the people to think themselves rather than to simply accept of what one is saying. That means he is also saying that you should have your own logic. You should have the analyzing strength. जिस तरीके से शंकराचार्य कहते हैं कि even to understand the spirituality one need to have some kind of logic. आगे बढ़ते हैं. Let us see how he did this. कैसे किए हैं वो हम लोग देखते हैं. देखिए एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ किस्तो गोतामी. Here the famous story is about the Buddha. Once there was a woman named Kastogotami whose son has died. She was so sad that she roamed through the streets of the cities and carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha. The Buddha said, "Bring me a handful of mustard seed and I will bring your child back to life." Kisaku Tami was overjoyed and started off at once, but Buddha gently stopped her and added, "The seed must come from the house of the family where nobody has died." आप समझ रहे हैं? What he is indicating, somewhere the same thing which Kabira is saying and Buddha, the philosophy, the idea of context is somewhere similar. कि आप वहाँ से मस्टर्ड सीड लाइएगा जिसके घर में कोई मरा नहीं है, एंड दिस इज़ इम्पॉसिबल. Kastugami went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, aunt, grandfather, grandmother had died. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ दिस? उपनिषद की तरफ आगे बढ़ते हैं. उपनिषद के बारे में क्या कहा गया है. 6 schools of philosophy are there. हमें ये समझना है कितने स्कूल्स हैं. 6 schools of philosophy. Over centuries, India intellectual exploration of truth has been represented by 6 systems of philosophy. ये मेजर है. These are known as वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योगा एंड पूर्व मीमांसा, वेदांता और उत्तर मीमांसा. These 6 systems of philosophy are said to have been founded by sages. जैसे कौन आ रहा है, कणाद बोलते हैं इनको,
लेकिन इन प्रोनाउंसिएशन समथिंग अलग टाइप से है। गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यासा। आगे बढ़ते हैं। दिस फिलोसफी स्टिल गाइड द स्कॉलरी डिस्कोर्स इन द कंट्री। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट, इंडोलॉजिस्ट आप समझते हैं जो इंडिया के बारे में लिखा था। Friedrich Max Muller has observed that six systems of philosophy were developed over many generations and contributions made by individual thinkers. That means ये evolving and how the interpretation is being done despite these Upanishad written way long. आज भी इसका इंटरप्रिटेशन जो है लोग अपने अनुसार से निकालते हैं। However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seems distinct from each other. तभी आपने देखा होगा कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, जिसकी वजह से हमारा देश का नाम भारत रखा गया, का जो परिकल्पना है, तो आप देखेंगे कि चारवाक दर्शन को भी और चारवाक को भी ऋषि के रूप में रखा गया है। whose philosophy is related about materialism। तो आप सोचिए कि कितनी महान ये सभ्यता है हमारे देश की, जो किसी भी चीज़ को फॉलो करता है, लेकिन उसमें अगर सत्यता है तो उन्हें ऋषि के नज़र से जिसमें सत्यता है, जो लोग सत्यता की उससे करते हो उनको भी ऋषि का दर्जा देता है। सो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया एंड थैंक्स दैट वी हैव बॉर्न इन इंडिया एंड वी आर इंडियन। कमिंग टू द नेक्स्ट उपनिषद, अराउंड द टाइम वेरियस, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशंस। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसको याद रखिएगा। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ एंड आफ्टर डेथ, अदर्स वांटेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म। ये क्वेरीज आया कि क्यों सैक्रिफाइसेस करना चाहिए। मेनी ऑफ दिस थिंकर्स फेल्ट दैट there was something permanent in the universe that would last even after death. That means कि यूनिवर्स में कुछ तो परमानेंट है जो डेथ के बाद भी रहेगा। They describe that as आत्मा और द इंडिविजुअल सोल और द ब्राह्मण, द यूनिवर्स सोल। आत्मा अमरणशील है, इस चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है कहाँ पे? उपनिषद में। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि वेर इज द एविडेंस that has been shown that something is permanent and that is आत्मा और ब्राह्मण और परम सोल, यूनिवर्सल सोल जिसको कह रहे हैं। They believed that ultimately both आत्मा and ब्राह्मण were one। ये कहना ये चाह रहे हैं कि आत्मा और ब्राह्मण वन है, और इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन कहाँ मिल रहा है? उपनिषद में। So this becomes important. Many of these ideas were recorded in the Upanishads. They state these were the parts of later Vedic text। तो ये कब के पार्ट हुए? later Vedic text के, क्योंकि after Veda when we find some this kind of great spiritual text that is Upanishad। Upanishad mean approaching and sitting near, जैसे हम लोग गुरु के समक्ष बैठते हैं, नज़दीक बैठते हैं, तो उपनिषद जनरली उसी सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि गुरु कहने का मतलब यहाँ पर है नॉलेज के नज़दीक अपने रिश्ते को बनाना, इसको बोलते हैं उपनिषद। नज़दीक रहना, गिविंग इम्पॉर्टेंस टू द नॉलेज मीन्स विजडम, नॉट लाइक टूडेज कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है बट यू आर नॉट हैविंग ह्यूमैनिटी। नो, विजडमफुल आइडिया के नज़दीक रहना, जीना, उसे एक्सेप्ट करना, उससे एक्सेस करना, दैट इज़ उपनिषद। देखिए अब हम लोग वो पढ़ते हैं द वाइज बेगर। हियर इज ए डायलॉग बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद। कौन सा है वो? छंदोग्य उपनिषद। सौनका एंड अभिप्रत्रेण, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन टफ है इसका करना, सो जस्ट बियर विथ मी। वो क्या कह रहे हैं कि वर टू सेजेस हु वर्शिप द यूनिवर्सल सोल। किसको पूजा कर रहे हैं? यूनिवर्सल सोल, जो अमरनीय है, जिस दैट मीन्स इसको आप कह सकते हैं या तो आत्मा या तो ब्रह्म को। वंस दे सैट डाउन टू ईट बेगर्स
down to eat, a beggar came and asked for some food. We cannot spare anything for you. Sanuka said, learned says, learned source, whom do you worship? The beggar asked. The universal soul, Abhi, Abhi Pratan replied, ah, it means you know that universal soul fills the entire world. Yes, yes, we know that, the sages know that. If the universal soul fills the whole world, it fills me too. Who am I but a part of the world? The beggar asked. You speak the truth, O young Brahmin, then O sages. But not giving me food, you are actually denying food to the universal soul. The sages realized that truth of what the beggars say and shared their food with him. देखिए ये यहाँ पर क्या है, व्हाट ए लॉजिक he has put, the beggar has put, कि अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं तो जो आत्मा है सबको इक्वल ट्रीट करता है. एंड इफ़ आई एम facing that particular scarcity of food, and if you are having something in abundance or even for you, why not you are sharing the same with me? तो ये सोचिए कि कितना बड़ा क्वेरीज है, and how the interpretation is going on and how well they even accepted what the beggar is saying. तो ये एक लर्निंग है. इस लर्निंग को आप आज भी समझने की कोशिश कीजिएगा. आगे हम लोग बढ़ते हैं. The text contains conversation between the teachers and the students. Often ideas are presented through simple dialogues. अब आइडियाज़ कहाँ से आ रहे थे? सिंपल डायलॉग से आ रहे थे. मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन. अब ये भी फिर से हमें याद रखना है कि उपनिषद में जो कंट्रीब्यूशन है, जस्ट लाइक वेदास, मोस्ट ऑफ देम वर रिटन बाय द मेल. Occasionally there was mention of women thinkers such as Gargi, Apala, घोषा, मैत्री. तो याद रखिए ये किस टाइप के हैं? उपनिषद टाइम पीरियड के, जो पोस्ट वैदिक टेक्स्ट है. और ये कौन कौन इम्पॉर्टेंट है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये क्वेश्चंस आ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में. हु आर दोज लेडीज़ जो कि स्कॉलरी वर्क कर रहे हैं? गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेय. तो आगे बढ़ते हैं. पुअर पीपल रेयरली टू पार्ट इन द डिस्कशंस. ये क्या इंडिकेट करना है? इवन दिस इज इंडिकेटिंग दिस थिंग ऑल्सो कि जो पुअर पीपल थे वो अपनी रोज़मर्रा के जीवन में इतने व्यस्त रहते होंगे, दे वर नॉट हैविंग द टाइम एंड दे आर नॉट हैविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर टू पार्टिसिपेट इन ऑल सच थिंग्स. वन फेमस एक्सेप्शन वाज, एक एक्सेप्शन भी है, सत्यकामा जबला, हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, अ स्लेव वुमेन, जबाली. ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज एक्सेप्शन, सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ही हैड अ deep desire to learn about reality. The reality was accepted as a student by Brahmin teacher named Gautama and become one of the best known thinkers of that time. ये इवन एक बेस्ट जवाली जो थे वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंकर के रूप में डेवलप किए, बिकॉज ही वॉज हैविंग द साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड क्वेस्ट टू नो अबाउट ऑल सच थिंग्स and became one of the best thinker of the time. Many of these ideas of Upanishad were later developed by a famous thinker called Shankaracharya. ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? शंकराचार्य. तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये कौन किन के द्वारा है? शंकराचार्य. कहाँ जन्मे थे? केरला में. एंड ये एक बहुत ये इंडिकेट करता है कि सम द लर्निंग थर्स्ट वाज देयर इन केरला सिंस टाइम इमेमोरियल. हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये पाणिनि के बारे में दिया गया है, जो एक ग्रामेरियन थे. ग्रामर का इन्होंने बहुत अच्छा इनको नॉलेज था, एंड डैट वाज टू ऑफ वर संस्कृत. ही अरेंज द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स in a special order and then used this to create a formula like those found in algebra. He used to write down the rules of the language in short formula, around 3000 of them. अब सोचिए कि कितने बड़े, मतलब कितने महान होंगे ये. So this was the uniqueness that if you are having the willpower to do something, to learn something, then definitely you can do wonders. हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें आगे जैनिज़्म के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बौद्धिज़्म का एक थोड़ा सा बौद्धिज़्म, उपनिषद
अब जैनिज़्म के बारे में देख रहे हैं कि किस तरीके से तो न्यू आइडियाज़ है वो आ रहा है. द लास्ट एंड 24th thinkers of the Jains, Vardhaman Mahavira, also spread his messages around this time 2500 years ago. That means देखिए कि 2500 years ago में 3 चीज़ें सिमिलरली चल रहा है. One is Buddhism, another is Upanishad, another is Jainism. He was Kshatriya's prince of the Lichvi, a group of part of Vajji Sangha. बुद्ध किसके थे? शाक्य के थे. ये किसके हैं? वज्जी संघ, लिच्छवी के पास. About which you will read in chapter 5. At the age of the 30, he left the home and went to live in the forest. कहाँ पर चले गए? फॉरेस्ट में. Just same similarities there between the Buddhism and Jainism. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end in which he attained the enlightenment. So he also attained the enlightenment, and then he came up. He was known with another name like Jin and all. He taught simple doctrine. Men and women who wished to know the truth must leave their homes. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा. अभी देर इज ए डीप मीनिंग कि व्हाट काइंड ऑफ घर, और अलग अलग चीज़ों का सब्जेक्टिवली वो बात करना चाहते हैं. दे मस्ट फॉलो स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग और लिविंग बींग्स. डैट मीन्स ये इतना ज़्यादा लोगों को अवेयर कराना चाह रहे हैं कि आप किसी एनिमल को भी ना मारें और किसी टाइप की वैसी एक्टिविटी ना करें जिससे किसी भी टाइप के प्राणी का, किसी टाइप का हनन हो सके. ऑल बीइंग्स सेड महावीर लॉन्ग टू लिव. आप उनको अपने तरीके से जीने के लिए छोड़ दें, उनके लाइफ में दखलंदाजी ना करें. ऑर्डिनरी पीपल कुड understand the teachings of Mahavira and his followers because they used Prakrit. Ordinary people in the same way like Buddhism, ordinary Mahavir भी अपने जो preachings है उसको प्राकृत लैंग्वेज में दे रहे हैं ताकि सभी कोई समझ सके. प्राकृत was spoken in Magध and known as Magधी. जो यहाँ का प्राकृत था उसको क्या बोलते थे? मगधी. और एक किस नाम पे लैंग्वेज का नाम पड़ रहा है? ऑन द बेसिस लोकेशन. हम लोग आगे बढ़ते हैं. फॉलोवर्स ऑफ महावीरा वर नोन एज जैन्स एंड ही हैड लेड सिंपल लाइफ्स बेगिंग फॉर फूड. ये लोग क्या करते थे? जनरली फूड ग्रो नहीं कर रहे बट दे आर बेगिंग फॉर द फूड. दे हैड ऑल्सो एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील. ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स. जो हम लोग देख रहे हैं कि हाउ मच दे वर सीरियस अबाउट द सेवेज ऑफ लाइफ ऑफ इवन इंसेक्ट्स. वो लोग कपड़े तक त्याग दिए. तभी आप देखें हम लोग कि बहुत सारे ऐसे जैन मुनि हैं जो आज भी कपड़े नहीं पहनते हैं. इफ़ यू विल एवर गेट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट पावापुरी देन यू कैन फाइंड देयर. It was difficult. It was very difficult for most of the men and women to follow these strict rules. Definitely, ये आज के लिए भी और कल के लिए भी it was very much literally difficult. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach the new way of life. तो ये लर्निंग के लिए भी, टीचिंग के लिए भी बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने छोड़ा, घर छोड़ा. आगे हम लोग बढ़ते हैं. जैनिज्म was supported mainly by traders. किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है? हु आर द मेजर सपोर्टर? ट्रेडर्स. फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स. क्योंकि फार्मर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि जब भी वो कुदाल वगैरह चलाएंगे लॉट मेनी इंसेक्ट्स विल डाई. ओवर hundreds of years Jainism spread in different parts of North India to Gujarat, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. कहाँ कहाँ पर मेजर सेंटर बना जैनिज्म के स्प्रेड का इंडिया में? तो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, नॉर्थ इंडिया. द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स आर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज. ये जो है ओरल हिस्ट्री के रूप में सोसाइटी में उनके जो लर्निंग्स है वो एग्जिस्टेंस में रहा. दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे वर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी. ये कहाँ पर
हमें देखने को मिलता है वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। कब मिलता है? अबाउट 1500 सेंचुरी, आज से 1500 साल पहले। आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने अभी देखा कि बुद्धिस्ट संघ में का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी चर्चा हमें विनय पिटक में मिलता है, जो यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है। और हम लोगों ने देखा कि जो अगर चिल्ड्रन हैं जिनका एज बिलो सर्टेन एज है, जहाँ पर उन लोगों ने चिल्ड्रन डिसाइड किया था, जैसे आज 18 ईयर्स है, then the responsibility was lying in the hands of the master if the boy is or girl is under the is a slave, और अगर वो किसी ऑर्डिनरी परिवार में जी रहा है तो उसे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ता था। सॉरी, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो ये लोग जो एसोसिएशन में रह रहे थे संघ में, वो उनको भिक्षुक कहा जाता था, कि हुई जो प्रवृत्ति थी उनकी, दे वर डिपेंडेंट ऑन द भिक्षा, इसलिए ये टर्म भिक्षु ही इस्तेमाल किया गया है। एंड दोज हु वर फीमेल आर सेड एज भिक्षुनी। दोज हु ज्वाइन द संघ हैज़ इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, मर्चेंट, लेबरर्स। ये अदर टाइप के प्रोफेशंस है। बहुत सारे प्रोफेशन वाले आकर के भी इसे ज्वाइन कर रहे थे, चाहे वो लेबरर हो, बावर्स हो, तो दे वर ऑल सेड एज भिक्षुस एंड भिक्षुनी। और संघा में वो लोग, संघा ओपन था उनके लिए, अनलाइक the earlier what you have find in Veda period. Many of them wrote down the teachings of the Buddha. Some of them also composed beautifully the poems and describing their lives in sanghas. That means whatever they are facing, they are learning, they are documenting all those things, all those realities. हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक अब आ रहा है विहारास। देखिए किस टाइप का इंटीग्रिटी है कि जैसे जैसे ये आगे की कंटेक्स्ट बता रहे हैं उसको फिर डिस्क्राइब करते चलते जा रहे हैं। यही टेक्निक को समझना है कि अगर आपको लिखने वक्त या मेंस का उत्तर देने वक्त की जो आप चर्चा कर रहे हैं उसमें एक कनेक्टिविटी है कि नहीं। इफ़ देयर इज़ ए कनेक्टिविटी देन द आइडिया इज़ वेल एक्सप्लेन्ड और नॉट। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए एक केव का पिक्चर है जो आपको समझना चाहिए कि उस समय के किस टाइप का स्किल था, इंजीनियरिंग स्किल था, या केव फॉलोड आउट on hills. This is a cave in Karle, present in Maharashtra. Bhikshus and Bhikshuni lived in and meditated in these shelters. तो इस टाइप के शेल्टर्स बने हुए थे, बट स्टार्टिंग में ये लोग गुफाएं में रहते थे। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि गया और जहानाबाद के नज़दीक दशरथ की गुफाएं थी आजीविका वगैरह के लिए। तो क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थे, उतने ज़्यादा लेबर्स नहीं थे, तो समवेयर इस चीज़ को बनाने के लिए रॉयल जो मतलब राजा का हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था। चलिए अब हम लोग विहारास के बारे में बात करते हैं। टू बिगिन विथ बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग। किस लिए? तो टीचिंग के लिए, टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग द ट्रूथ। द ओनली टाइम व्हेन दे स्टेड इन द प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये आपको यहाँ पर लॉजिक समझना है। किस समय में? रेनी सीजन में, क्योंकि द क्लाइमेट और द एनवायरनमेंट वाज नॉट एज सच दैट कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ट टेम्पररी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स एंड लिव्ड इन द नेचुरल केव्स। देखिए नेचुरल केव्स की भी बात आई है कि देयर वर सम विच वर मेड एंड देयर वर सम विच वर नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम वेंट मेनी सपोर्टर्स ऑफ भिक्षुस एंड भिक्षुनीज एंड they themselves felt the need for some permanent shelters in the monasteries were built. These were known as viharas. ये जो रहने के लिए इनको बनाया गया था उसको विहारा बोला जा रहा है। The earliest viharas were made of woods and then bricks. देखिए यही चीज़ को ये आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से you find the evidences of buildings made by wood in Kumbharar, Patna during Mauryan period, in the same way you are finding this that even the monasteries were made of wood and bricks. So this is important fact which one should know. Some were even caves that were dug out in hills, especially in western India, क्योंकि वहाँ पर इस टाइप का जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है वो हिली है, और वहाँ पर नेचुरल गुफा जैसे हम लोग एलिफेंटा, एल्लोरा, अजंता का देख रहे हैं, उस टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये मिलता है अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस
just as water of the rivers loses their names and separateness when they flow into their mighty ocean, so the varna or the ranks or in the family forgotten when they fall, the followers of Buddha join the order of the monks. ये क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, शांति को जानना चाहते हैं, बुद्ध के उस पर चलना चाहते हैं, तो आप एक वृहद बहुत बड़े उसमें मिल रहे हैं जहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, देयर इज़ नो अप डाउन, नो इनइक्वालिटी। ये इस चीज़ को सब्जेक्टिवली डिनोट करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेरी ऑफन द लैंड ऑफ द बिहारास वॉज बिल्ट एंड डोनेटेड बाई द रिच मर्चेंट्स एंड लैंड ओनर्स ऑफ द किंग्स। डेफिनेटली एक नॉर्मल आदमी नहीं दे सकता है, एक बड़ा रिच मैन मर्चेंट ये वैल्यू दे सकते हैं। The local people came with the gifts and foods of the court's medicine for victual and victual. That means according to the capacity of the people, they used to donate to the victuals and victuals. Buddhism is spread in many parts of the subcontinent and beyond. A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed. This had two distinct features. Earlier, Buddha's presence was shown in the sculpture by using certain signs. देखिए ये bodhisattva की बात किया जा रहा है, and this is very much important because this has been asked in a lot many examination, be it UPSC or PCS and other examinations. For instance, his attainment of enlightenment was shown in the sculpture of people tree. So now the statues of Buddha were made. Many of these were made in Mathura while others were in Taxila. ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो महायान का बौद्धिज्म का स्कल्पचर एविडेंसेस जो मिल रहा है, that is having two important center. One is Mathura and another is Takshila. Mathura and Takshila. So keep this in mind. अपना notes बनाते चलिएगा और उसमें लिख लीजिएगा. Now the statues of Buddha were made. Many of them were in Mathura and while others were made in Takshila. The second changes was belief in Bodhisattva. जो हम लोग अभी बात किए थे कुछ देर पहले कि the belief in Bodhisattva. These were supposed to be person who had attained enlightenment, and once attained enlightenment they could lead the completion, isolation and meditation. Definitely meditation के लिए एक्चुअली जो आइसोलेशन है वो काफ़ी फर्टाइल एटमॉस्फेयर होता है. द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वा बिकम वेरी मच पॉपुलर इन दिस पीरियड्स. किधर है तो ये आपको जो सेंट्रल एशिया है, चाइना है, कोरिया है, जापान है, इस एरिया में बोधिसत्वा बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, स्प्रेड कर गया. बुद्धिज्म स्प्रेड इन द वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया with dozens of caves were hollowed out, hills for bhikshus to live in. Buddhism was also spread in the southeastwards to Sri Lanka, Myanmar, Thailand. इसको थेरावाड़ा बोलते हैं, याद रखिएगा. थेरावाड़ा बुद्धिज्म. अरे देखिए आगे मिल गया. The older form of Buddhism was known as Theravada was popular in these areas. तो hopefully you will keep, because ये सारे जो फैक्ट्स हैं बुद्धिज्म के बारे में वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बुद्धिज़्म जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी एग्जामिनेशन. आगे हम लोग देख रहे हैं कि पिलग्रिम की बात कहा गया है. पिलग्रिम्स आर मेन एंड वुमेन हु अंडरटुक द जर्नी ऑफ होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप. द बेस्ट नोन ऑफ दिस वर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फायान, जो कब आ रहे हैं 1600 में, जुइंगयान 1400 में, एकियांग 50 ईयर्स लेटर ऑफ जुएंग. तो ये चाइनीज़ पिलग्रिम्स की बात किया गया है. यहाँ पर नालंदा को देखते हैं, यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में दिखाया गया है. जुएंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंट स्टडीइंग इन नालंदा, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज. देख रहे होंगे आप. द टीचर्स आर मेन ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि नालंदा वॉज वन ऑफ द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड एट द सेम टाइम द टीचर्स वर ऑफ ग्रेट टैलेंट एंड ग्रेट IQ इन दिस सेंस. और ये भी कहना चाह रहा है कि बिकॉज ऑफ बिकमिंग द रैशनल सेंटर, लॉजिकल सेंटर ऑफ दैट पीरियड, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वर कमिंग टू नो दिस रैशनैलिटी, दिस फिलॉसफीज, अंडरस्टैंड बुद्धिज्म एक्सेट्रा. हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है. हम लोग आगे की नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप उस रैशनैलिटी को डेवलप कीजिए जिससे कि आप अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड एट द सेम टाइम इस प्रिपरेशन को इंटीग्रेटेड फॉर्म में करते चलें. ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग, इंटरव्यू का अलग. इसको साथ में ऐसे भी देखिए कि किस तरीके से कंपैरेटिव स्टडीज़
कि किस तरीके से बौद्धिज़्म, जैनिज़्म और उपनिषद तीनों की जो लर्निंग थी, टीचिंग थी, वो क्या था, तीनों के जो प्रैक्टिसेस थे, जो टीचर्स थे, उनके कैसे थे, मान्यता कैसे थे। तो इन सब चीज़ों से आपको कंपैरेटिव स्टडीज़ मिलेगा, तब उस समय के सोसाइटी को आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएंगे हाउ द किंग वर बिलीविंग इन दोज प्रैक्टिसेस एंड फेथ। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और याद रखिएगा ये तीनों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लॉट मेनी क्वेश्चंस बिकम्स वेरी मच फॉर द एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जामिनेशन हो, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म, उपनिषद। उसके बाद हमारी जो 6 फिलॉसफीज है उससे ज़रूर क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसे याद रखिएगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग विथ पेशेंस एंड वी विल ट्राई कि किस तरीके से बीपीएससी के प्रिपरेशन और यूपीएससी के प्रिपरेशन को और अच्छा से किया जा सकता है। तो अभी जस्ट हम लोग ये फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं ताकि एटलीस्ट एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, हर एक सब्जेक्ट का क्या कोर आइडियाज़ है वो समझ में है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड कि कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, क्या किस टाइप की रैशनैलिटी को डेवलप करना है। तो हमारी ऑब्जेक्टिव ये है कि सोशल साइंसेस में सोशल साइंस के जो क्वेरीज़ हैं, माइंडसेट है, वो डेवलप हो। थैंक यू फॉर listening our lecture.